I lead you. The old reading has been taken from the Genesis, chapter 2, verse 8 to 17. It is written as, "And the Lord God planted a garden in Eden in the east, and there he put the man whom he had formed. And out of the ground the Lord God made to spring up every tree that is pleasant to the sight and good for food. The tree of life was in the midst of the garden, and the tree of knowledge and of good and evil. A river flowed out of Eden to water the garden, and there it divided and became 4 rivers. The name of the first is the Pishon. It is the one that flowed around the whole land of Havilah, where there is gold, and the gold of that land is good. Bdellium and onyx stone are there. The name of the second river is the Gihon. It is the one that flowed around the whole land of Cush. And the name of the third river is the Tigris, which flows east of Assyria. And the fourth river is the Euphrates. The Lord God took the man and put him in the garden of Eden to work it and keep it. And the Lord God commanded the man, saying, You may surely eat of every fruit of the garden, but of the tree of knowledge of good and evil you shall not eat, for in the day that you eat of it you shall surely die." This is the word of God. Thanks be to God. Chapter 22, verses 39 to 44. Jesus left the city and went as he usually did to the Mount of Olives, and the disciples went with him. When he arrived at the place, he said to them, "Pray that you will not fall into temptation." Then he went off from them about the distance of a stone's throw and knelt down and prayed. "Father," he said, "if you will, take this cup of suffering away from me. Not my will, however, but your will be done." An angel from heaven appeared to him and strengthened him. In great anguish he prayed even more fervently. His sweat was like the drops of blood falling to the ground. Rising from his prayer, he went back to the disciples and found them asleep. Worn out by their grief, he said to them, "Why are you sleeping? Get up and pray, that you will not fall into temptation." This is the word of God. Thanks be to God. प्रभु जी, आपने हमें सृजा, लेकिन पाप ने हमें नाश किया, लेकिन प्रभु यीशु आप हमें पुनः जीवित करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का कि आज के दिन हम सबों को यह अवसर मिला कि यहाँ पे हम इकट्ठा हुए हैं उसकी स्तुति, महिमा, प्रशंसा, बड़ाई के लिए। और लेंटन सीजन में उसने जो दुख सहा है उसके संबंध में विचार करने के लिए, कुछ सीखने के लिए। और धन्यवाद करते हैं मिस्टर मिसेस संखवार का, जिन्होंने अपने घर के दरवाजों को खोला परमेश्वर के वचन के लिए, कि यहाँ पर हम आकर के उसके वचन की सेवकाई मनादी कर सकते हैं। गॉड फॉर्म्ड अस एंड सिन डिफॉर्म्ड अस, बट क्राइस्ट ट्रांसफॉर्म्ड अस। मेरे प्रियो, आज लेंट सीजन का 17वां दिन है, जिसमें संडे भी इंक्लूडेड है। और अभी जो पुराने नियम से और नए नियम से जो पाठ पढ़े गए, उसमें 2 वाटिकाओं के बारे में, गार्डन्स के बारे में वर्णन था। पहला बागे अदन, यानी अदन की वाटिका, और नए नियम में बागे गतसमनी की वाटिका। अदन की वाटिका जो है, उसमें कई प्रकार के पेड़, वृक्ष और फल हैं। उसमें ज्ञान का फल है, जीवन का फल है। उसमें कई प्रकार की नदियों का दिया है वर्णन, धाराओं का, कि वो बह रही हैं। वहां पे सोना, मोती, सुलेमानी पत्थर और बेशकीमती पत्थर भी हैं। लेकिन साथ में वहां पे अदन की वाटिका में जीवन और मृत्यु भी रखे गए थे। और परमेश्वर ने ये अदन की वाटिका आदम को रहने के लिए दी थी कि वहां वो फले फूले, बढ़े, आबाद हो जाए। लेकिन आदम ने उस स्वर्ग के जीवन को खो दिया और मृत्यु को प्राप्त कर लिया। गतसमनी की बारी में, गतसमनी की वाटिका में, बागे गतसमनी में, उसका पहले तो अर्थ हम समझते हैं कि गतसमनी का मतलब क्या है। गतसमनी का मतलब होता है ऑयल प्रेस। वहां पे वो वाटिका जहां पे ऑलिव ट्री बहुत से लगाए जाते थे,
और वहां पे ऑयल प्रेस मतलब ऑयल मिल होती थी। वहां पे ऑयल जो है वो जैतून का तेल जो निकालते हैं तो उससे वो निकाला जाता था, इसलिए उसको गतसमनी कहते थे। और ये चीज जो है, जैसे शहरों के बाहर फार्म हाउस बने होते हैं तो वैसे ही शहर के बाहर फार्म हाउस बने होते थे। और उस फार्म हाउस में जितने पोर्शन में वो जैतून का बाग लगाया जाता था तो उसको गतसमनी की बारी, गतसमनी वर्ड कहा जाता था, क्योंकि वहीं से वो एक्सट्रैक्ट करते थे, ऑलिव को निकाल करके ऑलिव ऑयल वहां से निकाला जाता था। और ये प्राइवेट प्रॉपर्टी होती थी। और यहाँ पे जो ये गार्डन होता था गतसमनी का, इसमें दो कारणों से मुख्य रूप से लोग जाया करते थे। जैसे यहाँ पे पार्क में लोग टहलने जाते हैं तो वहां पे गतसमनी के बाग में, गार्डन में लोग या तो मेडिटेशन के लिए जाते थे कि वहां जाकर के मेडिटेशन करें क्योंकि शांति रहती थी, और या फिर गप मारने के लिए जाते थे कि दो चार दोस्त मिल गए और वहां बैठ करके अपने गपबाजी कर रहे हैं, इधर उधर की बात कर रहे हैं। और इसी बाग गतसमनी से, गतसमनी की वाटिका से प्रभु यीशु मसीह की सफरिंग शुरू होती है। और वो सफरिंग जो वहां से शुरू होती है उसको प्रभु यीशु मसीह बड़ी शांति के साथ, बड़ी विश्वास के साथ, यानी कामनेस एंड कॉन्फिडेंस के साथ इस पूरे स्ट्रगल को वो फेस करते हुए चलते हैं। और लास्ट तक जब वो क्रॉस तक चले जाते हैं और वहां तक वो आकर के जो परमेश्वर ने दुख का प्याला उनको दिया था वो उसको ग्रहण करते हैं, क्योंकि उस प्याले को ग्रहण करते समय वो कहते हैं कि प्रभु ये मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। अगर प्रभु यीशु मसीह ने वो क्रूस की मृत्यु या उसका दुख नहीं सहा होता तो आज ये जो मसीही धर्म है, क्रूस का धर्म है, वो स्थापित नहीं हो सकता था, स्टैब्लिश नहीं हो सकता था। और क्रूस की गाथा, जो क्रूस की कहानी है, इसको कोई भी नहीं जान पाता। तो मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि बागे अदन और बागे गतसमनी का क्या महत्व है, वो हमको क्या दर्शाते हैं। बागे अदन जहां खुदा ने आदम को रखा, लेकिन उसने जीवन को खो दिया। और बागे गतसमनी यहां यीशु गया और उसने जो आदम ने जो खोया था उसे फिर से स्थापित किया, इसे रीस्टोर किया। आदम ने खोया था लेकिन इब्ने आदम ने उसको दिलाया। इब्ने आदम, इब्न मतलब बेटा होता है, आदम का बेटा, आदम के हम सब बेटे हैं, प्रभु यीशु मसीह भी उसी कड़ी में आता है, तो इब्ने आदम इसलिए कहा जाता है। तो आदम ने जो खोया वो इब्ने आदम ने उसको दिलाया। अब कंपैरेटिव रूप से हम देखते हैं कि बागे अदन में क्या हुआ और बागे गतसमनी में क्या हुआ। तो बागे अदन में आदम ने सबसे पहले हम देखते हैं पाप किया, लेकिन बागे गतसमनी में यीशु मसीह ने पापों को हमारे उद्धार के लिए अपने ऊपर ले लिया। ये दो डिफरेंस है। बागे अदन में आदम ने पाप किया और बागे गतसमनी में प्रभु यीशु मसीह ने पाप को अपने ऊपर ले लिया। दूसरी चीज देखते हैं कि बागे अदन में जीवन का वृक्ष था, लेकिन आदम उसका उपयोग नहीं कर सका और वो परमेश्वर से दूर हो गया। तो परमेश्वर से दूर होने का ये पहला कदम आदम ने वहां बागे अदन में उठाया। लेकिन बागे गतसमनी में प्रभु यीशु मसीह मृत्यु की ओर बढ़ा, क्योंकि गतसमनी के बाद फिर आगे वो कलवरी की क्रूस की तरफ बढ़ता है हमारे पापों को लेकर के, तो मृत्यु की ओर बढ़ता है। उसका बढ़ाया हुआ कदम मृत्यु की ओर बागे गतसमनी में था। पहला पतरस उसके दूसरे अध्याय के 24 वचन कहता है, वो आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मर करके धार्मिकता का जीवन बिताए, उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। तो प्रभु यीशु मसीह ने दुख आया, मार खाई, उसको लोगों ने मारा, थूका और क्या क्या नहीं किया। क्यों? क्योंकि हमारे पाप क्षमा किए जाए। तीसरी चीज देखते हैं कि बागे अदन में कि आदम ने अपने पापों के कारण अपना जीवन खो दिया और समस्त मानव जाति को के ऊपर मृत्यु थोप दी, क्योंकि उसने पाप किया। जब उसको मृत्यु का दंड मिला तो वो मृत्यु वहां से आकर के सारे मनुष्य जाति के ऊपर आ गई। और प्रभु यीशु मसीह ने वहां से जो जर्नी स्टार्ट की बागे गतसमनी से, तो कलवरी क्रूस पर जाकर के अपनी जान दे करके, लेकिन मृत्यु पे विजय हासिल की और पुनरुत्थान के द्वारा सभी विश्वासियों को जीवन के वृक्ष को फिर से उसने रिस्टोर कर दिया, फिर से जीवित कर दिया। वो दोबारा जीवित हुआ, पुनरुत्थान हुआ उसका। तो उसने कहा कि तुम सब
मरने के पश्चात तुम्हारा पुनरुत्थान होगा और तुम सब परमेश्वर को देखोगे और तुम्हारा न्याय किया जाएगा। चौथी बात डिफरेंस बागे अदन और बागे गतसमनी की हम ये पाते हैं कि बागे अदन जो है वो आदम के बाद जो है उसका, जिसमें वो पाप में गिरा, वो बागे अदन खत्म हो गया, उसका कोई अस्तित्व नहीं है, कहीं आज वो दिखाई नहीं देता, कोई बता नहीं सकता कि बागे अदन कहाँ था। वो ऐसे अपना अंदाज से लोग बताते हैं, लेकिन उसका कोई कहीं फिजिकल एविडेंस नहीं है कि यहाँ पे बागे अदन होगा। लेकिन बागे गतसमनी आज भी मौजूद है। वहां पे लोग, आप उस पे गूगल पे जाइए या और फेसबुक वगैरह पे लोग डालते रहते हैं, तो आज भी वो पुराना जो बागे गतसमनी का जो पोर्शन है, वो जैतून के पेड़ है वगैरह वगैरह, यहाँ तक लोग क्लेम करते हैं कि वो पेड़ जहाँ यीशु मसीह जिस पेड़ के नीचे, जैतून के पेड़ के नीचे बैठा, और प्रभु यीशु मसीह जिस पेड़ के नीचे बैठा था वो जैतून का पेड़ है। और जहाँ बागे गतसमनी से जीवन की खुशियों का प्रारंभ हुआ, क्योंकि वहीं से प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस की मृत्यु सही और हमको जिंदगी दी। वहां से क्या क्या चीज खत्म हुई, अगर आप देखें प्रभु यीशु मसीह के दुख उठाने के बाद यशायाह नबी के पुस्तक उसके 11 अध्याय के 1 से 10 पद में, तो वहां से लिखा है कि श्राप जो है, कर्स जो है वो समाप्त हो जाएगा और शांति का राज्य स्थापित होगा। दूसरी चीज, यशायाह नबी के पुस्तक उसके 35 अध्याय के 6 पद में वचन कहता है कि चंगाई मिलेगी और साथ साथ खुशहाली बहाल होगी, मिरेकल्स होंगे, आश्चर्य कर्म उसके बाद होना शुरू होंगे। जो आश्चर्य कर्म हम आज भी देखते हैं, हम लोग आज भी देखते हैं कि बड़े बड़े आश्चर्य कर्म होते हैं। और उसके बाद उपज बढ़ेगी, पैदावार बहुत बढ़ेगी, जैसा कि आमोस की पुस्तक उसके 9वें अध्याय के 13 पद में कहता है वचन। और साथ साथ सबसे मुख्य बात, प्रकाशित वाक्य उसके 21 अध्याय के 3 पद में वचन कहता है कि परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में होगा और प्रभु यीशु मसीह सबको आशीषित करेगा। तो परमेश्वर का डेरा हमारे बीच में होगा। जैसा हम विश्वास करते हैं कि जहां 2 या 3 हमारे नाम से इकट्ठा हो गए वहां मैं हूंगा, वो उपस्थित होगा। हमारा ये विश्वास है, हम तो 2-3 से यहाँ बहुत ज्यादा है, तो निश्चित रूप से परमेश्वर हमारे बीच में उपस्थित है। जो आदम ने बागे अदन में खोया, उसे बागे गतसमनी में प्रभु यीशु मसीह ने रिस्टोर कर दिया, स्थापित कर दिया, पुनर्स्थापित कर दिया। देने के लिए प्रभु यीशु मसीह बागे गतसमनी में गया, तो वहां पे उसको किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा और क्या क्या उसने किया, क्या उसके सामने आया। जैसा कि अभी लूका रचित सुसमाचार उसके 22 अध्याय के 39 से 44 पद को पढ़ा गया, अगर आपने ध्यान से सुना हो तो उसमें जो बातें मुख्य रूप से जो पढ़ी गई, 22 अध्याय के 41 पद में वो अकेलेपन का स्थान था। वहां लिखा है वचन में, जो अभी हमने पढ़ा और सुना, और वो अपने आप उनसे अलग एक ढेला फेंकने के टप्पे पर गया और घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगा। तो उनसे अलग हो गया। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ था, लेकिन वहां पे उनसे वो अलग हो गया, सेपरेट हो गया। और ये बात इसलिए हुई कि वो अलग से चाहता था कि मैं अकेले जाऊं, अलग बैठ करके प्रभु पिता से प्रार्थना करूं, मांगूं कि प्रभु ये जो प्याला मुझको पीने के लिए ठहराया गया है, इसको ये टल जाए। अकेलापन मेरे प्रियो बहुत ही कठिन चीज है। कभी हमने पता नहीं अपने जीवन में ये बात कभी महसूस की है कि नहीं, कभी आप अकेले पड़ जाएं, अकेले हो जाएं और तब देखें कि जीवन में किस प्रकार से क्या फील होता है। इंसान डिप्रेशन में चला जाता है। एक जमाना था कि जब मैं बैचलर था और अकेले रहता था, बचपन से मुझे अकेले रहना बड़ा अच्छा लगता था और मैं अकेले ही बड़ा एंजॉय करता था, किताबें पढ़ता रहता था या जो कुछ भी करता था। लेकिन बाद में जब मेरी फैमिली हो गई तो अब मुझे ऐसा लगता है कि डे बाय डे कि अब मैं अकेले रह ही नहीं पाऊंगा। मुझे कहीं अकेले जाना हो तो मुझे पता नहीं अजीब सा महसूस होता है कि मैं ये कैसे करूंगा तो वो कैसे करूंगा। मुझे जब तक कोई बात करने वाला ना हो, मेरे बच्चे साथ में ना हो, वाइफ ना हो, पूरा परिवार ना हो, अकेलापन बहुत ही खराब चीज है। अभी एक हाल ही में घटना हुई, ये अकेलापन जो है मेरे प्रियो ये मृत्यु की ओर ले जाता है, आदमी डिप्रेशन में चला जाता है और यहाँ तक कि सुसाइड तक कर लेता है। अभी लखनऊ में पिछले 10 दिनों के पहले की घटना है, वो उसमें पढ़ती हैं 2 बेटियां हैं उनकी। बड़ी बेटी शायद 16, 17, 18 साल की होगी और एक छोटी है। माँ उसी स्कूल में प्रिंसिपल है। और 10 दिन पहले की घटना है कि माँ लखनऊ में एक जगह है आलमबाग, तो वो किसी काम से आलमबाग गई थी
कार से दिल्ली आ रहे थे और एक लड़की बड़ी वाली जिसका हाई स्कूल का एग्जामिनेशन स्टार्ट होने वाला था और वो एग्जामिनेशन के स्ट्रेस से इतना ज्यादा टेंशन में आ गई थी और छोटी वाली स्कूल में खेलने चली गई थी। तो वो लड़की जो थी घर में अकेले उसको कुछ नहीं समझ में आ रहा था और उसने क्या किया कि पंखे से लटक करके सुसाइड कर ली। और जब मेड उनके घर में आई तो देखा कि वो बेटी जो पंखे से लटकी हुई है। तो अकेलापन इतना खतरनाक होता है मेरे प्रियो, और अकेलेपन को दूर करने के लिए सिवाय एक ही चीज है और वो है प्रार्थना। प्रार्थना से हम अकेलेपन को दूर कर सकते हैं। जैसा कि प्रभु यीशु मसीह जब अलग हो गया, अपने चेलों को अलग कर दिया उसने, तो अकेले में जाकर के वो परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा, पिता से प्रार्थना करने लगा। तो अकेलेपन को, डिप्रेशन को, स्ट्रेस को दूर करने के लिए जरूरी है कि हम प्रार्थना में जाएं। गतसमनी का बाग जो है वो अपनी इच्छा को समर्पित करने का स्थान है। लूका रचित सुसमाचार उसके 22 अध्याय के 42 पद में जैसा कि पढ़ा गया कि हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। पूरी तौर से उसने समर्पित कर दिया पिता के साथ, मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। जीवन और मृत्यु के समय में ये कहना कि तेरी इच्छा पूरी हो बहुत ही कठिन है, लेकिन ये चीज जो है, जो भी कहता है ऐसा, ये पूर्ण समर्पण को दर्शाता है। बोलचाल में तो हम कभी कभी बोलते जैसा खुदा की मर्जी हो, प्रभु की जैसा इच्छा हो, लेकिन क्या सचमुच में ऐसा हम चाहते हैं? क्या कभी दिल में हमने सोचा है? हम हमेशा चाहते हैं कि नहीं, जैसा मेरी मर्जी हो वैसे ही पूरी हो। प्रभु की इच्छा से हमारा कोई लेना देना नहीं होता, हम चाहे भले ही ऐसे ही बोल देते हो। पता नहीं हम कभी कभी क्या क्या बोल जाते हैं जब हमारी मर्जी के मुताबिक काम नहीं होते हैं। तो इतने हम गुस्से में आ जाते हैं कि बहुत से लोग तो रास्ता ही बदल देते हैं। अरे कुछ नहीं है, छोड़ो, क्रिश्चियनिटी वगैरह, मसीहत वगैरह कुछ नहीं है, सब ऐसे ही है। क्योंकि हमारी बात सुनी नहीं गई, हमारी दुआ सुनी नहीं गई, तो लोग प्रार्थना करना बंद कर देते हैं, बाइबल पढ़ना बंद कर देते हैं, चर्च जाना बंद कर देते हैं, और पता नहीं क्या क्या गुस्से में होकर के वो करते हैं। लेकिन प्रभु के सामने पूर्ण रूपेण अपने आप को समर्पित कर देना, ये क्या रहना चाहिए कि अपने आप को परमेश्वर के सामने उसकी मर्जी के अनुसार समर्पित कर दो। मेरे 2 और बेटे थे, अर्पण और रौनक, जो अब नहीं रहे, और जब डॉक्टर्स ने उनको डायग्नोज किया कि उनकी बीमारी लाइलाज है, तो हम लोगों ने बहुत दुआएं की। और क्या इलाज नहीं किया, देश विदेश सब जगह के डॉक्टर से बेस्ट पॉसिबल इलाज उनका कराया गया। और क्या क्या ऑपरेशन अजीब अजीब जो हमने कभी नहीं सुने थे, ब्रेन में चिप लगाई गई, पेट में उनके बेक्लोफेन पंप लगाया गया, रीढ़ की हड्डी में क्या, पता नहीं क्या क्या नहीं किया होगा डॉक्टर ने, और फिर भी कुछ नहीं हो सका। हम लोग दुआ करते थे, लेकिन दुआ में हमेशा हम यही करते थे कि प्रभु, हम ये मांग तो रहे हैं, लेकिन तेरी इच्छा जैसी हो वो पूरी हो। हम तेरी इच्छा के सामने हम उसको स्वीकार करते हैं, हम सर्वभू हैं, और हम ये नहीं चाहते कि जैसा हम चाहते हैं वैसा, तू जैसा चाहता है वैसा हो। दोनों बच्चे परमेश्वर के पास चले गए, हम उसमें संतुष्ट हैं। हमने पूरी तौर से अपने आप को समर्पित कर दिया, प्रभु की इच्छा पूरी हुई, जो कि हमने कहा कि तेरी इच्छा जैसी, तेरी मर्जी जैसी है वो पूरी हो। पिता की मर्जी के लिए प्रभु यीशु मसीह ने सलीबी मौत सहली, प्रभु की इच्छा में सदा प्रसन्न रहना और कहना कि तेरी इच्छा पूरी हो, ये एक बहुत ही अच्छी और बड़ी और नेक बात है। तीसरी बात हम देखते हैं जहां परमेश्वर से हमको सहायता मिलती है, प्रभु यीशु मसीह को सहायता मिली, स्वर्गीय सहायता प्राप्त करने का यह स्थान था। लूका रचित सुसमाचार उसके 22 अध्याय के 43 पद में लिखा है कि तब स्वर्ग से एक दूत उसको दिखाई दिया जो उसे सामर्थ्य देता था। एक स्वर्गदूत उसके पास आया जब आदमी बहुत परेशान होता है और इतने टेंशन में होता है, उसको समझ में नहीं आता कि क्या करे, और अगर उसी समय कोई आ जाए तसल्ली देने के लिए, रास्ता दिखाने के लिए, बताने के लिए, सही मार्ग बताने के लिए, तो वो सचमुच में एक गॉड सेंट पर्सन होता है, दूत होता है, एंजल होता है, परमेश्वर के द्वारा भेजा गया। जैसे परमेश्वर ने एक स्वर्गदूत अपना भेजा कि देखो मेरा बेटा प्रभु यीशु कितना तकलीफ में है, कितने स्ट्रेस में है, कितना तनाव में है, कितनी वेदना उसको है, तो उसको सामर्थ्य देने के लिए, शक्ति देने के लिए एक स्वर्गदूत आ गया। वैसे ही जब हम बड़ी बड़ी कठिन परिस्थितियों में आ जाते हैं और हमको सहन करने की शक्ति चाहिए होती है, तो परमेश्वर से जब हम
मांगते हैं तो परमेश्वर हमको अपने स्वर्गदूत को भेज करके हमारी सहायता करता है। जैसे कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के पास अपना स्वर्गदूत भेज करके उसकी मदद की। तो यीशु मसीह आज भी अपने दूतों को भेज करके हमको हमारी सहायता करता है, हमको बचाने के लिए तैयार है। लेकिन हम हैं कि अपने आप को तैयार करने के लिए तैयार नहीं हो पाते, अपने आप को तैयार नहीं कर पाते। एक सच्ची घटना मैं आपको बताना चाहूंगा। एक पास्टर थे, उनका बेटा था और हर संडे को चर्च के बाद वो निकल जाते थे। छोटे बेटे को 8-9-10 साल का बेटा होगा, ट्रैक बांटने के लिए सड़कों पे बांटते हुए जाते थे। और एक दिन ऐसा हुआ कि बारिश, जैसा आजकल बड़ा मौसम खराब है, लैंड का समय था, लेकिन फिर भी बारिश आंधी ये सब होने लगी। तो चर्च के बाद चर्च में बहुत कम लोग आए, तो पिता ने कहा पास्टर साहब ने बेटे से कि आज रहने दो। तो बेटे ने कहा कि नहीं, चलते हैं आज भी। तो पिता ने मना किया फिर भी कि तो मैं तो अब एज है, मैं नहीं जा पाऊंगा ऐसे मौसम में, तुम जाना चाहो तो चले जाओ बेटा, लेकिन छाता वोता ले लेना और थोड़े से ट्रैक्स ले लो बांटने के लिए। तो लड़का लेकर के वो ट्रैक्स चला गया। 8-10 ट्रैक उसने लिए कि इस मौसम में सड़क पे मिलेगा कौन। तो वो जो भी दिखाई दिया, 2-4 लोग उसको बांटता वो चला गया और सबको बांट दिया उसने। जितने लोग जो 2-4 मिले दिखाई दिए उसको, एक ट्रैक उसके पास बच गया। तो वो सोचने लगे क्या करें, उसको लेकर के वापस लौट रहा था कि चलो वापस ले चलते। फिर उसके दिल में आया कि चलो रास्ते में सड़क के किनारे घर था, तो चलो उसमें उसको दे देते हैं खटखटा करके। और इस यहां से अब मैं दूसरी ओर आपको लेकर के जाता हूं कि ये बात कहां से शुरू हुई कि संडे के दिन एक महिला चर्च में आई। जब पास्टर ने अनाउंस किया कि कोई गवाही लोग देना चाहे तो आए, तो एक महिला पीछे से उठी, उसने कहा कि मैं कुछ कहना चाहती हूँ। तो पास्टर ने कहा जी हाँ बताइए। तो उसने कहा कि मैं वो लड़का, एक ऐसा पास्टर का लड़का उसने बताया था, वो कौन है, कहाँ है। तो पास्टर ने अपने बेटे को उठाया कि खड़े हो जाओ, अपना चेहरा दिखाओ उनको। बोली हाँ यही है। और ये अभी 2-3 दिन पहले मेरे घर पे ही आया था और इसका चेहरा बिल्कुल एंजल के माने रेडिएंट हो रहा था, चमक रहा था। तो तुम लोगों ने पूछा कि क्या हुआ, तो उसने बताया कि ये मेरे पास आया जिस समय, तो मैं अकेली थी, मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई और अकेलेपन के एहसास से मैं इतना परेशान हो गई थी, इतनी टेंशन में आ गई थी कि मैं आत्महत्या करने जा रही थी। और जैसे ही वो औरत फांसी लगाने के लिए फंदा अपना उसमें बांध रही थी, तो बांध ऑलमोस्ट लिया था उसने कि इतने में दरवाजे पे घंटी बजी, तो उसका हाथ रुक गया। तो उसने सोचा कि थोड़ी देर रुके रहो, चला जाएगा जो भी आया है। तो रुकी रही वो चुपचाप। तो थोड़ी देर शांति हुई तो उसने फिर बांधना शुरू किया। जैसे ही बांधना शुरू किया फिर दूसरी घंटी बज गई, तो फिर वो रुक गई। उसने कहा बड़ा ढीठ है, जो भी आया है जा ही नहीं रहा है, ऐसे मौसम में भी पता नहीं कौन है। तो उसने सोचा चलो थोड़ी देर और वेट कर लेते हैं। तो फिर तीसरी बार जैसे उसने बांधने की कोशिश की, फिर घंटी बज गई। तो वो झुंझला करके उतरी कि चलो देख तो लेते हैं कि कौन है। फंदा उसने उतार दिया, नीचे निकाल करके गई तो देखा कि सामने वो बच्चा खड़ा था, मुस्कुराता हुआ, उसके चेहरे से बिल्कुल आंखें निकल रही थी। और उस बच्चे ने उस मैम से कहा कि सॉरी मैम टू डिस्टर्ब यू, बट जीसस लव्स यू। तो यीशु मसीह आपसे प्यार करते हैं। और उसने वो पैम्फलेट ट्रैक जो था उनके हाथ में पकड़ा दिया। और उस महिला ने उस बात ट्रैक को लिया, पढ़ना जब शुरू किया तो उसने देखा कि वो सब पूरी बातें कि प्रभु यीशु मसीह ने कैसे हमारे लिए अपनी जान दी, हमारे गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया और सारी बातें। तो उसको एकदम से रियलाइज हुआ कि मैं क्या करने जा रही थी। और जब परमेश्वर हमको सांत्वना देता है, ऐसा रोकता है, तो हमको उसको ग्रहण करना चाहिए। और उसी समय वो घुटने कबल हो गई, उसने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया। और फिर जब वो चर्च में आई तो उसने आकर के गवाही दी कि ये बच्चा फरिश्ता बन करके मेरे दरवाजे पे पता नहीं कैसे गॉड सेंट एंजल आ गया और इसने मुझको इतना जघन्य बड़ा पाप अधर्म करने से बचा लिया कि मैं आत्महत्या करने से बच गई और मैंने अपने आप को प्रभु यीशु मसीह को सौंप दिया। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर अद्भुत रीति से अपने एंजल्स को हमारी सहायता करने के लिए भेज देता है। और चौथी चीज देखते हैं हम, वो गतसमनी जो है वो भयंकर दुख का स्थान है। वो स्थान जहां पे प्रभु यीशु मसीह ने, वहां से दुख का उसका प्रारंभ हुआ, सताव शुरू, जो उसने कठोर
वेदना उसके अंदर आई। लूका रचित सुसमाचार उसके 22 अध्याय के 44 पद में लिखा है, और वो अत्यंत संकट में व्याकुल होकर और भी हृदय में वेदना से प्रार्थना करने लगा, और उसका पसीना मानो लोहू की बड़ी बड़ी बूंदों की है कि कितनी मतलब किस लेवल की उसकी वेदना होगी, तकलीफ होगी कि जब पसीना जो है उसकी जगह पे खून टपक करके गिरने लगे। मेरे ख्याल से तो ये एक इंतहा है, लिमिट है उस दुख की, तकलीफ की, सौरभ की। और प्रभु यीशु मसीह जब इतनी बड़ी पीड़ा में आया तो उसने उतनी पीड़ा की स्थिति में अपने पिता से प्रार्थना करने लगा, और इतनी घनघोर पीड़ा में था वो, लेकिन फिर भी उसने पिता के हाथ में सब कुछ छोड़ दिया। उसने पिता को पुकारना नहीं छोड़ा। कभी कभी आदमी इतनी कठोर उसमें पीड़ा में होता है कुछ भी, तो झुंझला करके या दुख से या तकलीफ से जिसको पुकारना चाहिए परमेश्वर, उसको भूल जाता है, लान तान करने लगता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अपने पिता को पुकारना नहीं छोड़ा। मेरे प्रियो, हम किस प्रकार का बिहेव करते हैं? क्या हर दुख सुख में परमेश्वर से हम जुड़े रहते हैं? क्या प्रार्थना करते रहते हैं? अगर हम ऐसा करते हैं, परमेश्वर की मर्जी के मुताबिक काम होने की दशा में हम खुश हैं, या मर्जी के मुताबिक नहीं होने की दशा में क्या हम मुंह मोड़ लेते हैं? याद रहे हम सबों को मेरे प्रियो कि हम जितना उससे दूर होते हैं तो हमसे भी वो दूर हो जाता है। जैसे आदम ने आज्ञा का उल्लंघन किया और परमेश्वर से दूर हो गया, तो वैसे ही परमेश्वर ने भी फिर उससे दूरी बना ली और उसको बागे अदन से बाहर निकाल दिया। तो यीशु परमपिता परमेश्वर से हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। परमपिता परमेश्वर और पिता और पुत्र दोनों हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं और उसका जवाब भी हमको देते हैं। What Adam lost in the Garden of Eden, Jesus restored in the Garden of Gethsemane। मेरे प्रियो, जो आदम ने खोया उसे यीशु ने लौटाया। प्रभु यीशु मसीह आप सबों को बहुतायत की आशीष दे। ये हमारे स्वामी पिता, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए। आप हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में मत डालिए, परंतु बुराइयों से हमें बचा लीजिए, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा अब और सर्वदा आपके ही है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ, विशेष रूप से मिस्टर मिसिस संखवार के साथ, उनके बच्चों के साथ बहुत सहायता से होती रहे। आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।